Hey everyone, I hope you all must be having a great time. It's me Gaurav Karan from Ved Science Foundation. I welcome you all to this beautiful session of Ved Science Foundation. Now you can subscribe to our channel and also you can hit the bell icon for the regular updates. So yes, we were discussing chapter namely the story of village Palampur in your book Economics, and as I have already told you that it is the important chapter for your NTSC examination as well as for your CBSC because there are some questions which actually comes from this chapter, so you have to study this chapter in detail. और अगर आप मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे. So let's get started with this chapter. Please do subscribe to our channel, that is Ved Science Foundation. Now, so as you know, this is the first chapter of your book Economics, the story of village Palampur. Now, so how is land distributed between the farmers of Palampur? Now there has been distribution of land between farmers of Palampur. Alright, there has been distribution of land. Land का बंटवारा कैसे हुआ है? So this is the main heading. So let's discuss this in detail. Now, not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. See, people are engaged in agricultural activity, as I have already told you before. They are engaged in the agricultural activities because majority of the population in village Palampur, they are dependent on agriculture. Alright, so this is their source of livelihood. So what I mean to say is, so people are engaged in agriculture activities, alright, have sufficient land for cultivation. Not all people. Not all people. Okay. Then in Palampur, about 1/3 of the 450 families are landless. 1/3 of the 450 families are landless. That is 150 families, most of them Dalits, have no land for cultivation. Most of them Dalits, which belongs to scheduled caste, they have no land for cultivation. Is it clear? So this is the factual information which you have to remember. Alright. Palampur में 1/3 of the 450 families land नहीं है, they are landless. That is 150 families, most of them Dalits, that is scheduled caste, have no land for cultivation. No land for cultivation. Then of the remaining families who own land, यानी कि जिनके पास लैंड है, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Small plots of land less than 2 hectares of size. ठीक है, तो ये साइज पता चल गया, less than 2 hectares in size. Now this is the factual information. Alright, there is no concept in it. You just have to remember this. Alright, what you need to do is just watch this video again and again. Alright, आपको अपने आप याद हो जाएगा. Then cultivation of such plots does not bring adequate income to the farmer's family, although they are cultivating, alright, on such plots, and you know that the size of the plot is 2 hectares, I mean less than 2 hectares in size, alright, which does not bring adequate income to the farmer's family. So that is, बहुत कठिनाई से ये अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in size. तो विलेज का कुछ एरिया ऐसा, यानी कि विलेज का जो एरिया है, that is more than half of the area of the village, alright, it is covered by plots that are quite large in size, जो बहुत बड़े बड़े साइज में हैं. ठीक है. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers. Again, factual information. 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. More than 2 hectares of land. अब आपके सामने ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि 60 families of medium and large farmers cultivate more than 2 hectares of land.
So this is the factual information. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. तो कुछ फार्मर्स ऐसे भी है जिनके पास की जो लैंड की जो कवरेज है वो 10 से 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है. सो दीज आर ओनली द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, देयर इज नो कॉन्सेप्ट इन इट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स दैट इज देयर. ऑलराइट, सो यू नीड टू जस्ट रिमेंबर द फैक्ट. नाउ हु विल प्रोवाइड द लेबर. अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? ऑफ कोर्स वहां के लोग, ठीक है. आफ्टर लैंड, लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. अगर हम लेबर की बात करते हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में 4 फैक्टर्स के बारे में बात करी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल. अगर हम इसमें कैपिटल की बात करें, ठीक है, तो हमने फिक्स कैपिटल के बारे में बात करी थी, ऑलराइट, और हमने वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करी थी. इज दैट क्लियर? देन farming requires a great deal of hard work, as you know. Yes, it is. And small farmers along with their families cultivate their own fields. यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स है, ठीक है, अपनी फैमिली को ही वो लोग जोड़ लेते हैं, अपनी फैमिली में ही आपस में काम करते हैं और अपने छोटे छोटे खेतों में वो काम करते हैं जस्ट फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए. दे प्रोवाइड द लेबर required for farming themselves. So provide labor, they provide labor required for farming themselves. ठीक है, खुद का फार्म पे काम करने के लिए वो खुद को इंगेज करते हैं. देन मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. अब यहां पर स्मॉल फार्मर्स के बारे में बात करी हमने, फिर आता है मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. नाउ व्हाट दे डू, दे हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. And farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि वो फार्मर्स जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, उस केस में क्या होता है, वो या तो इन मीडियम या लार्ज फार्मर्स के फार्म पे काम करते हैं, ठीक है, या तो फिर वो कोई और अपॉर्चुनिटी देखते हैं. बट ज़्यादातर ये लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. All right, so this is clear. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. Of course, भाई जो फार्म लेबरर्स होते हैं, ठीक है, अगर वो किसी और के प्लॉट पे काम करते हैं, किसी और की फील्ड पे, अगर किसी और एग्रीकल्चर फील्ड पे वो काम करते हैं, तो उनका हक नहीं है उन क्रॉप्स पे, ठीक है. उनका बस काम क्या है, क्रॉप्स को उगाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना. ऑलराइट, सो दे आर वर्किंग एज अ लेबरर, वो मालिक नहीं है. इज दैट क्लियर टू यू? सो दे डू नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. नाउ दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क. यानी कि वो डेली वेज अर्नर्स के रूप में काम करते हैं, डेली उनको सैलरी मिलती है, 100 रुपये, 150 रुपये, जो भी है, ठीक है. एंड वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. यहाँ पर काइंड का मतलब क्या है, उनको उसके बदले कुछ क्रॉप मिल जाता है, ठीक है. आप हमारे लिए काम करेंगे, हम आपको खाने के लिए अनाज दे देंगे, तो ठीक है. एंड समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो. ऑलराइट, तो कुछ ना कुछ उनको खाने में मिलता रहता है. बहुत अक्सर ऐसा नहीं होता है, रेयरली. ऑलराइट, नाउ इट इज सेल्डम. ओके, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क दीज डेज. अब यहां पर देखिए क्या कहानी चल रही है. दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट नेटिव ऑफ द विलेज. ये कुछ ऐसे गरीब वर्ग के लोग हैं जो कि आपस में बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो इनकी कॉन्वर्सेशन हम लोग सुन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें पता लग जाएगा कि क्या सिनेरियो है. नाउ इट इज डिफिकल्ट. दिस man in the name of Dala, he says, it is difficult to find work these days. Only the large farmers hire us, and that too for very limited number of days. आज के टाइम पे जॉब लेना, काम करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, और जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं वही हमको हायर करते हैं, और वो भी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हम खाली बैठे रहते हैं. मिस रामकली क्या बोलती हैं, घनश्याम जो कि एक लार्ज फार्मर है, बहुत बड़ा फार्मर है,
has just bought a harvester, so we are going to get even less work during the harvest season this year. And last year I worked for less than 5 months in the whole year. तो इसका कहने का मतलब ये है कि घनश्याम जो कि एक बहुत बड़ा फार्मर है, उसके पास क्या है, उसके पास हार्वेस्टर है, ठीक है। ही जस्ट बॉट हार्वेस्टर, जिसकी वजह से सारा का सारा काम हार्वेस्टर से हो ही जाएगा। तो ये जो मैन पावर है, ऑलराइट, उसका तो इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, तो हमें काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से हमारे काम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, इनका कहना ये है। फिर आ जाते हैं दाला के ऊपर। वी हैव ट्रैक्टर्स फॉर प्लॉइंग, हार्वेस्टर्स फॉर हार्वेस्टिंग, थ्रेशर्स फॉर थ्रेशिंग। तो हमारा काम क्या रह गया? जब सारी की सारी मॉडर्न टेक्निक्स यहीं पर है, तो हमारा काम कहाँ रह गया? इवन फॉर रिमूविंग वीड्स सम फार्मर्स स्प्रे वीडिसाइड्स। तो कहने का मतलब यह है, जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, उन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की वजह से हमारा जो काम है वो एकदम रुक गया है, हमारी इनकम का सोर्स एकदम बंद हो गया है। देन रामकली सेज दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज, जो कि एक नेबरिंग विलेज है, ठीक है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली जो आप ऑल वेदर रोड वाली जो आपने बात सुनी होगी फर्स्ट सेशन में, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है, विलेज की, नेबरिंग विलेज इन द नेम ऑफ रायगंज। तो वहाँ पर ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री है, छोटी सी यूनिट है, तो वहाँ पर ये काम करना को राजी हो गई है, ठीक है, अगर इसको खेत में काम नहीं मिला तो। नाउ दिस मैन सेज आई ओ द लोकल मनी लेंडर 2000 यानी कि 2000 रुपीज। आई हैड टेकन रुपीज 1000 लास्ट समर व्हेन नो वर्क वाज अवेलेबल इन द फील्ड्स। हाउ विल आई एवर रीपे? यस, आई हार्डली अर्न इनफ फॉर 2 स्क्वायर मील्स। तो कहने का मतलब यह है कि उसने पहले से ही 2000 रुपये उधार ले रखे हैं, ठीक है। पिछले साल उसने 1000 उधार ले लिया था, ठीक है, एडवांस ले लिया था। अब उसको ये समस्या आ गया कि अगर हमें काम नहीं मिला तो मैं अपना लोन कैसे चुकाऊंगा, मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा, ठीक है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि 2000 रुपये सिर्फ कर्जे की बात हो रही है। सिर्फ ये 2000 की बात नहीं है, गांव में 2000 और जो भी लैंडलेस लेबरर है उनके लिए 2000 2 लाख के बराबर होता है, ठीक है। So it is a huge amount. And this says, she says actually, my situation is not much better due to past debt. The money lenders refuse to give me any loan. तो इसने बोला है कि मेरी सिचुएशन भी तुम्हारे से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मनी लेंडर्स ने मुझे पहले ही पैसा दे चुका है वो, ठीक है, मैं पहले ही कर्ज में हूँ, बट अब वो मेरे को एक भी रुपया देने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन को आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई से ये अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। ऑलराइट, हाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल। Then, so the conversation between Dala and Ramkali laborer might be employed on a daily basis for one particular farm activity like harvesting or for the whole year. Dala is a landless farm laborer who works on daily wages in Palampur. This means he must regularly look for work. तो कहने की बात ये है, कहने का मकसद ये है कि जो दाला है उसके पास बहुत ज़्यादा समस्या है, उसको अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करना है। ही हैज़ टू फुलफिल हिज फैमिलीज नीड्स, ठीक है, और उसको रेगुलरली किसी काम में इंगेज होना ही पड़ेगा, तभी उसका घर चल पाएगा, तभी वो खाना ठीक से खा पाएगा। सो दिस इज व्हाट द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर मार्च 2017, ठीक है, इसके मुताबिक, इसके अनुसार जो मिनिमम वेज सेट बाय द गवर्नमेंट इज 300 पर डे। ये आपको याद रखना है, 300 पर डे मिनिमम वेजेस, ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, इज दैट क्लियर? 300 पर डे, ऑलराइट, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना है। दाला गेट्स ओनली ₹160। अब यहां पर देख सकते हैं कि आप क्या सिचुएशन है। ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स, भाई लोग बहुत ज़्यादा हैं, खेत बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, काम की जो डिमांड है वो कम है, बट लेबर की जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या है, कंपटीशन हो जाता है कि जो सबसे कम पैसों में काम करेगा हम उसको हायर कर लेंगे। तो उनकी मजबूरी है, उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो पीपल अग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस एंड दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर. Both Dala and Ramkali are among the poorest people in the village.
इस कहानी का एक्चुअली मकसद ये था समझाने का कि आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी ज़िंदगी इतनी कठिनाई से, इतनी मुश्किल से गुजार रहे हैं। ऑलराइट, भारत के कई गांव ऐसे हैं, देर आर मैनी विलेजेस इन इंडिया जहां पर ये सारी समस्या अभी भी है, अभी भी प्रिवेल करती है। ऑलराइट, सो दिस इज द केस। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, नाउ it is an important factor. As you know, we need capital. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. Of course, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पैसा किसी से उधार लेते हैं। They borrow from large farmers or village money lenders or the traders who supply various inputs for cultivation. तो किससे borrow करते हैं? From large farmers या फिर from traders. Alright. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। भाई इनफॉर्मल सेक्टर है ना, ये फॉर्मल सेक्टर तो नहीं है। फॉर्मल सेक्टर से अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो उनका फिक्स होता है। ऑलराइट, बट अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर में जाएंगे, अपने रिलेटिव से लेंगे या मनी लेंडर से लेंगे, तो उनका कुछ ऐसा फिक्स हिसाब किताब नहीं होता, उनके पास प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी नहीं होते। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। इट इज़ ऑन देयर ओन इंटरेस्ट। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई एंड दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो यानी काफ़ी कठिनाई होती है, काफ़ी मुश्किल हो जाती है। कई फार्मर्स तो सुसाइड कर लेते हैं इसके चक्कर में, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, बहुत बार ये न्यूज़ में आता है। एंड इन कंट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। ऑलराइट, इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, अगर कंपैरिजन करें स्मॉल फार्मर्स के लिए, small farmers or medium farmers. All right, now there has been comparison between the small farmers and medium and large farmers. ठीक है, तो जो large farmers है उनके पास अपनी savings होती हैं जो कि उनको farming से मिल जाती है। So they are thus able to arrange the capital needed for the farming, for any agricultural activity. तो वो मैनेज कर लेते हैं, बट स्मॉल फार्मर्स का क्या, वो मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। ठीक है, और जिसके कारण वो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा। देन सो दिस इज द एक्टिविटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें ये जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो उन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें कितना समझ में आता है। अमंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, we found that labor is the most abundant factor of production. सबसे ज़्यादा लेबर ही है। ठीक है, काम कम है बट लेबर बहुत ज़्यादा है, तो किसको काम मिलेगा? जो कम पैसों में काम करेगा। There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunities of work are limited. काम की अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड है। ठीक है, they belong to either landless families or they belong to either landless families or यहां पर आ जाएगा स्मॉल फार्मर्स। ऑलराइट, या तो वो लैंडलेस फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनके पास कोई खेती नहीं है, जिनके पास कोई लैंड ही नहीं है, या तो वो स्मॉल फार्मर्स होते हैं। ठीक है, लैंडलेस फैमिलीज और स्मॉल फार्मर्स। सो दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। देन in contrast to labor, land is a scarce factor of production. Cultivated land area is fixed. This is important. लेबर के मुताबिक लैंड जो है वो एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड तो फिक्स है ना, लैंड की तो कमी है। ठीक है, इसलिए ज्यादा लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है। तो कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज फिक्स्ड। मोर ओवर, इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। तो जो लैंड है वहां पर, द लैंड हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली। इज दैट क्लियर? अमंग द पीपल एंगेज्ड इन फार्मिंग, there are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in condition not much better than
द लैंडलेस फार्म लेबरर। यानी कि मिला जुला के अगर हम देखें तो किसी की भी कंडीशन अच्छी नहीं है। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स, ठीक है, एंड फर्टिलाइजर्स। इज दैट क्लियर? यानी कि यील्ड को बढ़ाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्हाट दे नीड पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। ऑलराइट, सो बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इज दैट क्लियर? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर a great deal of capital. You need a great deal of capital. All right, पैसा बहुत चाहिए आपको. Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan. तो अभी हमने सिचुएशन देखी, ठीक है, अभी हमने सिचुएशन किसकी देखी? अभी हमने दाला की सिचुएशन देखी और रामकली की सिचुएशन देखी। तो दाला ने जो 2000 रुपये पहले से लिए हुए थे वो उसको रिपे क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसके पास काम नहीं था। ऑलराइट, तो जिसके चक्कर में इट एक्चुअली पुट फार्मर्स इन ग्रेट डिस्ट्रेस टू repay the loan. Then therefore capital too is a scarce factor of production. Of course it is also a scarce factor of production, particularly for the small farmers. So dash is a natural resource. Now what is natural resource? Land is a natural resource. Land is a natural resource, whereas capital is man-made. All right. So it is possible to increase capital, whereas land is fixed. Land is fixed. Therefore, it is very important that we take good care of land and other natural resources used in farming. तो अगर हमने लैंड को बेहतर करना है, उस पर प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो हमें बहुत ही केयरफुली, बहुत ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ऑलराइट, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़। तो ये थी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वेरी वंडरफुल डे। स्टे होम, स्टे सेफ।